स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, रिसेंट टूल्स फॉर क्लासिफाइंग सेरिब्रल पाल्सी एंड क्लासिफिकेशन ट्री ऑफ सब टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी एंड एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जानते हैं कि हमें सेरिब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन के बारे में क्यों जानना चाहिए, बिकॉज द प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग कंडीशंस सच एज सेरिब्रल पाल्सी इज important because it allows cases with similar characteristics to be grouped together, and it is important to classify the different features of cerebral palsy as this helps to set realistic expectation and influences the treatment. Okay, so हमें इन रीजंस की वजह से क्लासिफिकेशन के बारे में जानना चाहिए। Cerebral palsy is often classified based on several factors. These are severity, topographical distribution, muscle tone and functional ability. So इन factors के according cerebral palsy को classified किया गया है। Classification है according to severity. Severity can be classified as mild, moderate or severe. This classification is broad and it provides a simple way of communicating the scope of impairment. So, severity के according हमें cerebral palsy की severity कितनी है उसके बारे में पता चलता है, जो कि classified की गई है mild, moderate और severe. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ट्रोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, जो कि रेफर करता है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी आर अफेक्टेड, एंड it is useful classification when combined with motor function classification, because as it provide a distribution of how and where a person is affected by cerebral palsy and which can guide treatment protocol. Okay, in short में जाने तो ट्रोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि सेरिब्रल पाल्सी की वजह से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है, और अगर हम इसे कंबाइन कर लें मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो हमें सेरिब्रल पाल्सी की एक पूरा पता चलेगा कि कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है और उनका फंक्शनल लेवल क्या है, मीन्स उनका वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। सो इस क्लासिफिकेशन के अंडर में हमें अगर कंबाइन करके चलें तो एक टोटल पिक्चर मिलती है सेरिब्रल पाल्सी की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है मसल टोन। टू टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब मसल टोन आर हाइपरटोनिया एंड hypotonia. Hypertonia means increased muscle tone, often resulting in very stiff limbs and associated with spastic cerebral palsy. And hypotonia means decreased muscle tone, often resulting in loose, floppy limbs and associated with non-spastic cerebral palsy. So, according to muscle tone, cerebral palsy को two type में divide किया गया है, hypertonia and hypotonia. Okay, and hypertonia means increased muscle tone and hypotonia means decreased muscle tone. Next classification system है functional classification system. इसमें हम फोकस ऑन द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन द डोमेन ऑफ कॉग्निशन, सेल्फ केयर, मोबिलिटी एंड सोशल एस्पेक्ट. There are several classification systems within these, including they are the gross motor function classification system, the manual ability classification system and communication function classification system. So इन सिस्टम या इन स्किल्स को यूज करके हम किसी भी चिल्ड्रन विद सेरिब्रल पाल्सी का फंक्शनल लेवल को पता कर सकते हैं, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब हम जानते हैं रिसेंट टूल्स ऑफ क्लासिफाइंग सेरिब्रल पाल्सी, जो कि है स्वीडिश क्लासिफिकेशन एंड सर्विलेंस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इन यूरोप. Swedish classification of cerebral palsy adopt a topographical descriptive approach. उसके according they describe the
types of cerebral palsy in muscle tone and distribution of affected limbs. According to muscle tone, they describe the types of cerebral palsy. They are spastic, dyskinetic, ataxic, or mixed. And according to distribution of affected limb, they describe the type of cerebral palsy in monoplasia, hemiplasia, diplasia, tetraplegia, and quadriplegia. Okay, so according to Swedish classification, cerebral palsy का ये classification है. Next is surveillance of cerebral palsy in Europe. The surveillance of cerebral palsy in Europe was stabilized in 1998 and developed a new classification in 2000. और ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ऑफर्स अ डिसीजन फ्लो चार्ट टू असिस्ट ए क्लासिफिकेशन इनटू न्यूरोलॉजिकल एंड टोपोग्राफिकल कैटेगरीज with well defined symptoms and requirements provided for each neurological category. So ये जो सर्विलेंस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इन यूरोप क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमें एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कराता है जो कि हमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी में हेल्प करता है. इस क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. टू सर्विलेंस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इन यूरोप, जो फ्लो चार्ट बताया गया है टू क्लासिफाई सेरिब्रल पाल्सी, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं. फ्लो चार्ट को डिटेल में समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है, जो कि है इज देयर परसिस्टिंग मसल टोन इन वन और मोर लिम्स. क्या परसिस्टेंट मसल टोन बढ़ा हुआ है एक या उससे ज्यादा लिम्ब में? अगर यस, देन आर बोथ साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व. क्या दोनों साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व है? अगर यस, तो उसको हम स्पास्टिक बायलैटरल के क्लासिफिकेशन के अंडर में रखेंगे. और अगर बोथ साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसे स्पास्टिक यूनिलैटरल क्लासिफिकेशन के अंडर में रखेंगे. ओके. और अगर परसिस्टिंग मसल टोन इंक्रीज नहीं है वन और उससे ज्यादा लिम्स में, तो हम देखेंगे कि इज द टोन वेरिंग. क्या टोन वेरी कर रहा है? वेरी मीन्स कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है. अगर हाँ, तो उसको हम डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन के अंडर में रखेंगे. और ये जो वेरिंग टोन है वो जब एक्टिविटी कम हो, रिड्यूस एक्टिविटी के साथ टोन टेंड टू बी इंक्रीज हो रहा हो, तो हम उसे डिस्काइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन में रखेंगे. और अगर ये जो टोन वेरी कर रहा है वो इंक्रीज एक्टिविटी के साथ, मीन्स एक्टिविटी बढ़ने के साथ अगर टोन कम हो रहा है, तो हम उसे कोरियोआर्थोटॉइड सेरिब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन के अंडर में रखेंगे. और अगर ये टोन वेरी नहीं कर रहा है तो हम इसे नॉन क्लासिफिकेबल कहेंगे. मीन्स ये सेरिब्रल पाल्सी का टाइप हम क्लासिफाई नहीं कर सकते. और इज देयर जनरलाइज हाइपोटोनिया विद साइन ऑफ अटेक्सिया. मीन्स अगर बॉडी में जनरलाइज हाइपोटोनिया है, हाइपोटोनिया मीन्स टोन कम है ऑल ओवर द बॉडी में विद द साइन ऑफ अटेक्सिया. अगर हाँ, तो वो अटेक्सिक सेरिब्रल पाल्सी के अंडर में क्लासिफाई करेंगे. और अगर वो नहीं है तो हम नॉन क्लासिफाइबल कैटेगरी में रखेंगे. सो आपने जाना कि कुछ क्वेश्चंस को ध्यान में रख के हम कैसे सेरिब्रल पाल्सी के क्लासिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के. सो जब भी अगर आप किसी भी सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे को देखें तो आप इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखिए और उसको अप्लाई करिए ताकि एक प्रॉपर डायग्नोसिस या प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी आप कर सकें. एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी के बारे में जानते हैं, जो कि है यूनिलैटरल. यूनिलैटरल मीन्स वन साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड. बाइलैटरल मीन्स बोथ साइड ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड.
जो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है जिसके अंडर में क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया और डाइप्लेजिया आते हैं, वो आइदर बाइलेटरल और यूनिलैटरल हो सकते हैं। मीन्स उनमें वन साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड हो सकती है और बोथ साइड ऑफ द बॉडी भी अफेक्टेड हो सकती है। जबकि डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी एंड अटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में हमेशा बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट रहता है। Thank you so much for watching this video. नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हमने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जिसके अंडर में कौन कौन से टाइप की क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ।